Hello students, welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas. So friends, we have an application by the name Careers Cloud which you can go and download through the Play Store. And once you have downloaded, you can log in with your Gmail ID. And why I am suggesting you this application, because this is the one-stop solution for all the current affairs. This is the best of the best application and the platform where you can enhance your learning through help. Here you will be provided with multiple courses. Here you will be provided with multiple options of quizzes, and even you will be provided current affairs on daily basis. PDFs and quizzes will be provided to you on daily basis, both in Hindi as well as English. Here you will be provided current affairs with weekly basis and monthly basis also. Here remember, once you have done watching our video, then you can log in through this application, take out the PDF, read that PDF and go through the quizzes. That will enhance your preparation. Same you have to do for weekly and same you have to do for the monthly also. In monthly you will be provided with the top 100 important questions PDF and video also, that will enhance your learning, and it will be a very beneficial and important video for the revision perspective. And not just this friends, apart from this we also provide you banking and economic questions. We provide you state current affairs such as of Uttarakhand, UP, Tripura, Telangana, and many more. Not just this, apart from this we also provide you topic wise current affairs, and the topics that we are providing you are really important. These topics are such as national affairs, international affairs, important days, sports, defense, science and technology, apps and web portals, obituary. These are the important topics that are being asked in various exams across India. So these are the topics that are must and should be covered and will be beneficial for the preparation of the students. हेलो एवरीवन। सो आज की वीडियो में दिसंबर मंथ के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। काफ़ी हेल्पफुल सेशन रहेगा आप सभी के लिए रिवीजन पर्सपेक्टिव से, एंड तक बने रहिएगा। दिसंबर मंथ के तो करंट अफेयर्स हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एंड में जब हम क्वेश्चंस खत्म कर लेंगे उसके बाद रिवीजन करंट अफेयर्स देखेंगे, कुछ पुराने करंट अफेयर्स जो कि आपकी लर्निंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले बात की जा रही है किस बैंक या ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली साइन किया है एक लोन अग्रीमेंट $100 मिलियन का विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ताकि इंडिया में त्रिपुरा में टूरिज्म डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लाए जा सकें। अर्बन डेवलपमेंट एंड टूरिज्म डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को यहाँ पे लाने के लिए कहाँ पर, त्रिपुरा में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किसके साथ अभी $100 मिलियन का ये एक एग्रीमेंट साइन किया, तो ये है एशियन डेवलपमेंट बैंक। नेक्स्ट, which among the following are correct with respect to Forbes annual list of world's highest paid female athletes? वर्ल्ड की हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट्स की ये लिस्ट रहेगी, फॉर्ब्स के द्वारा ये डाटा रिलीज किया गया। ABC ऑप्शन पूछा जा रहा है कौन सा ठीक रहेगा, तो तीनों ऑप्शन यहाँ पर आपके बिल्कुल सही रहेंगे। पॉलिश टेनिस प्लेयर ईगा स्वातिक, ये इन्होंने टॉप किया इन दिस लिस्ट विद एन अर्निंग ऑफ $23.9 मिलियन एक साल में। दूसरी पोजीशन पे फिर दूसरा ऑप्शन है PV सिंधु, ये इंडिया की बैडमिंटन प्लेयर है, 16th पोजीशन पे रही इन दिस लिस्ट विद $7.1 मिलियन अर्निंग के साथ। एंड सी ऑप्शन रहेगा 43 की एज में अमेरिकन टेनिस प्लेयर वीनस विलियम्स, सेलिना विलियम्स की ये बहन रहेंगी, ये ओल्डेस्ट प्लेयर रही इन द लिस्ट, एंड 19 ईयर ओल्ड कोको गॉफ, ये यंगेस्ट प्लेयर रही ऑन द लिस्ट। तो तीनों ऑप्शन यहाँ पर आपके बिल्कुल सही रहेंगे। Next, in December, IRDAI is all set to launch the first of its kind affordable insurance product covering the risk against life, health and property. तो ये तीनों चीज़ें यहाँ पे कवर की जाएंगी इन द इंश्योरेंस प्रोडक्ट लॉन्च्ड बाय IRDAI, एंड ये फोर्थ क्वार्टर में लॉन्च किया गया फॉर द फर्स्ट क्वार्टर के लिए लॉन्च किया गया फिस्कल ईयर 25 के लिए। तो पूछा जा रहा है क्या नाम रहेगा इस इंश्योरेंस प्रोडक्ट का, तो ये है बीमा विस्तार, राइट। इसमें लाइफ, हेल्थ एंड प्रॉपर्टी तीनों इंश्योरेंस यहाँ पे कवर की जाएंगी। नेक्स्ट आ जाते हैं यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन गडकरी जी, इन्होंने अनाउंस किया दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लान्स टू इंट्रोड्यूस अ GPS बेस्ड टोल कलेक्शन सिस्टम। GPS बेस्ड टोल कलेक्शन सिस्टम लॉन्च करने की यहाँ पे बात की गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा मार्च 2024 तक, राइट। मार्च 2024 तक ये GPS बेस्ड टोल कलेक्शन सिस्टम यहाँ पे लॉन्च करने की बात की गई। NHAI इसको इम्प्लीमेंट करेगा, एंड जैसे अभी आप RIFD के सिस्टम से आपका पैसा कट जाता है, अब GPS बेस्ड आपकी लोकेशन बेस्ड आपका पैसा कटना ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, विच बैंक हैज़ रिसेंटली लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड दैट इज़ द ई-सवर्णा कार्ड ऑन रुपे नेटवर्क। तो ये जो ई-सवर्णा कार्ड है ना, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, इंडसइंड बैंक के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। ये रुपे नेटवर्क पे लॉन्च किया गया है और ये पहला कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड रहेगा, ठीक है, मार्क करके इसको। नेक्स्ट,
किस बैंक ने भी रिसेंटली साइन किया एक $165 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट विद वर्ल्ड बैंक टू फाइनेंस ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर फोटोवोल्टिक प्रोजेक्ट्स इन रेजिडेंशियल एंड इंस्टीट्यूशनल सेक्टर्स। तो रेजिडेंशियल एंड इंस्टीट्यूशनल सेक्टर्स में सोलर पैनल्स, सोलर फोटोवोल्टिक प्रोजेक्ट्स को यहाँ पे लॉन्च करने की बात की गई, जो कि इनकी बिल्डिंग्स के छत पर यहाँ पे इंस्टॉल किए जाएंगे। रूफटॉप है ना, तो छत पे इंस्टॉल करने की बात की गई। पूछा जा रहा है कि किस बैंक ने यहाँ पे वर्ल्ड बैंक के साथ टाई अप किया, तो वो है एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने यहाँ पे वर्ल्ड बैंक के साथ ये टाई अप करा है। तो कौन सा रहेगा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इन्होंने टाई अप किया किसके साथ? वर्ल्ड बैंक के साथ। लाइन ऑफ क्रेडिट कितनी रहेगी? $165 मिलियन की ये लाइन ऑफ क्रेडिट रहेगी। मूविंग ऑन, नेम द स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर, जिन्होंने जो अभी कमीशन किया गया बाय द इंडियन नेवी इन मुंबई महाराष्ट्र। तो क्या नाम रहेगा उस स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर का? वो है INS इम्फाल, राइट? INS इम्फाल ये एक स्टेल्थ गाइडेड डिस्ट्रॉयर रहेगा, करेक्ट। INS इम्फाल, इसको यार्ड 12706 के नाम से भी जानते हैं। ये एक स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। नेवल डॉकयार्ड मुंबई महाराष्ट्र में इसको कमीशन किया जाएगा। राजनाथ सिंह जो कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, इनकी प्रेजेंस में। एंड ये थर्ड ऑफ द फोर्थ प्रोजेक्ट 15B विशाखापट्टनम क्लास डिस्ट्रॉयर रहेगा, जो इंडियन नेवी की वॉरशिप डिज़ाइन ब्यूरो के द्वारा डिज़ाइन किया गया है। एंड इसको बिल्ड किया गया है बाय मडगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। नेक्स्ट है, आरबीआई ने अप्रूव किया अपॉइंटमेंट ऑफ चंद्रशेखर रंजन एज द पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ डैश बैंक। तो याद रखेंगे, आरबीआई ने अभी चंद्रशेखर रंजन की अपॉइंटमेंट अप्रूव करी है एज द पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक। मार्क करेंगे, ठीक है। कोटक महिंद्रा बैंक के ये बन गए हैं नए पार्ट टाइम चेयरमैन। एंड ये किनको रिप्लेस करेंगे? तो ये प्रकाश आप्टे, इनको रिप्लेस करेंगे टू बी द न्यू पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली लॉन्च किया ओसाइरस एपेक्स, जो कि है ओरिजिन स्पेक्ट्रल इंटरप्रिटेशन रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन एंड सिक्योरिटी अपोफिस एक्सप्लोरर। ये और ओसाइरस एपेक्स ये बेसिकली मिशन नासा के द्वारा लॉन्च किया गया था, ताकि 2029 में एक एस्ट्रॉयड अर्थ के साथ से फ्लाई ऑफ करेगा, राइट, फ्लाई बाय करेगा। तो उस एस्ट्रॉयड को स्टडी करने के लिए ये मिशन लॉन्च किया गया था, और उस एस्ट्रॉयड का नाम रहेगा अपोफिस, राइट। तो याद रखेंगे, अपोफिस एस्ट्रॉयड को स्टडी करने के लिए, जो 2029 में फ्लाई बाय करेगा अर्थ से, उसको स्टडी करने के लिए नासा के द्वारा एक मिशन लॉन्च किया गया था, जिसका नाम रहेगा ओसाइरस एपेक्स। नेक्स्ट, अभी एक फ्रेंच पॉलिटिशियन डैश हु सर्व्ड एज द प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन कमीशन 1985 से 1995 के बीच में इनका निधन हो गया। तो क्या नाम रहेगा उनका? वो है जैक्स डेलोर्स, राइट। ये वो प्रेसिडेंट है यूरोपियन कमीशन के 1985 से 1995 के बीच में, जिनका निधन हो गया एट द एज ऑफ 98 इन पेरिस, फ्रांस। नेक्स्ट, विच IIT कोलैबोरेटेड विद रिलायंस जियो टू डेवलप भारत GPT, जो कि एक जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर प्रोग्राम रहेगा, राइट, सिमिलर टू दैट ऑफ अ चैट GPT। तो ये भारत GPT लॉन्च करने की बात की गई। यहाँ पे IIT बॉम्बे ने रिलायंस जियो के साथ टाई अप किया, ताकि इस भारत GPT को डेवलप किया जा सके। फिर इसी के साथ साथ और एक चीज़ याद रखेंगे, IIT गुवाहाटी ने गवर्नमेंट ऑफ असम के साथ यहाँ पे टाई अप करा, ताकि बच्चों को स्टेम सब्जेक्ट्स में प्रमोट करने के लिए, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स में प्रमोट करने के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इन सब्जेक्ट्स को पढ़ें एंड अपना फ्यूचर इन सब्जेक्ट्स में बनाएं। इसीलिए एक स्कीम लॉन्च की गई थी, आरोहन स्कीम, गवर्नमेंट ऑफ असम के द्वारा। तो इस आरोहन स्कीम के अंडर IIT गुवाहाटी ने गवर्नमेंट ऑफ असम के साथ टाई अप किया, ताकि स्टेम सब्जेक्ट्स को बढ़ावा दिया जा सके। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द स्टेप्स टेकन बाय सेबी इन दिसंबर 2022, अगर दिसंबर 2023 अगर देखें तो तीनों ऑप्शन यहाँ पर आपके बिल्कुल ठीक रहेंगे। सेबी ने नोटिफाई किया अ प्रोसीजर फॉर द पब्लिक इशुएंस ऑफ ZCZP, जो कि है जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट, बाय नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड लिस्टिंग ऑफ सच इंस्ट्रूमेंट्स ऑन सोशल स्टॉक एक्सचेंज। बिल्कुल सही। NPO वाया लेड मैनेजर सबमिट्स द ड्राफ्ट फंड रेजिंग डॉक्यूमेंट टू द रजिस्टर्ड SSC with specified fees and an application for in principle approval, and the draft document is posted on both SSC and organization's website for a minimum of 20 days for public comments। बिल्कुल सही। तीसरा कह रहा है, सेबी ने अलाउ किया स्टॉक ब्रोकर्स टू सेटल देयर क्लाइंट्स फंड्स lying in the trading members on Saturdays, that is on one more day is provided for the settlement। तो तीनों ऑप्शन यहाँ पर आपके बिल्कुल ठीक रहेंगे। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू RBI's लिस्ट ऑफ डोमेस्टिकली सिस्टमैटिक इंपॉर्टेंट बैंक्स, जो कि रिलीज की गई दिसंबर 2023 में, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स विल नीड टू मेंटेन हायर कैपिटल फ्रॉम 1 अप्रैल 2025। तो याद रखेंगे, SBI,
एंड HDFC बैंक, इन दोनों को यहाँ पर हायर कैपिटल मेंटेन करना पड़ेगा फ्रॉम 1 अप्रैल 2025। नेक्स्ट, इन दिसंबर डैश वॉज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वीमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ CISF। तो CISF की अभी रिसेंटली कौन वो पहली वीमेन डायरेक्टर जनरल अपॉइंट की गई हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, पूछे जाने के चांसेस रहेंगे। वो है नीना सिंह, पहली वीमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ CISF। फिर अनीश दयाल सिंह, याद रखेंगे अनीश दयाल सिंह, इनको यहाँ पर रिसेंटली अपॉइंट किया गया फुल टाइम डायरेक्टर जनरल ऑफ CRPF। ठीक है, फिर इसी के साथ साथ राहुल रसगोत्रा, ये बनाए गए हैं नए डायरेक्टर जनरल ऑफ ITBP। ठीक है, मार्क करेंगे। मूविंग ऑन, फिर रशिया की स्पेस एजेंसी है रॉसकॉस्मोस एंड USA की स्पेस एजेंसी है नासा। इन्होंने रिसेंटली एग्री किया टू एक्सटेंड देयर पार्टनरशिप फॉर स्पेस एक्सप्लोरेशन बाय कंटिन्यूइंग क्रॉस फ्लाइट्स टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अंटिल 2025। पहले रशिया ने बोला था कि हम 2024 में एग्जिट कर देंगे इस कोलैबोरेशन को बिटवीन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बिटवीन वेरियस कंट्रीज। तो यहाँ पे रशिया ने एग्जिट करने की बात की थी ISS से, लेकिन अब वापस से हम देख रहे हैं ये कोलैबोरेशन एक्सटेंड कर दिया है 2025 तक। नेक्स्ट, किस मिनिस्ट्री ने रिसेंटली लॉन्च किया नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम एनविसाइज्ड एज वन नेशन वन पास सिस्टम? इससे जो इंडिया की एग्रो फॉरेस्ट्री है ना, इसमें काफ़ी ज़्यादा हमें ग्रोथ देखने को मिलेगी। जो ट्रांसपोर्टेशन है, जो लॉजिस्टिक है इसकी, वो बहुत ज़्यादा इजी होने वाली है। करेक्ट, तो याद रखेंगे अभी रिसेंटली नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम NTPS, ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा लॉन्च किया गया था। एंड जैसे मैंने बताया, इससे जो आपके ट्रांसपोर्टेशन है जैसे टिम्बर का, बैम्बू का, फॉरेस्ट प्रोड्यूस का अक्रॉस इंडिया, उसमें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। लॉजिस्टिक यहाँ पे बहुत ज़्यादा ईजी होने वाली है। नेक्स्ट आ जाते हैं DEA अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इन्होंने इंक्रीज कर दिया इंटरेस्ट रेट ऑन सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम। 8% से बढ़ा के कितना कर दिया गया है? ये 8.2% कर दिया गया है फॉर द फोर्थ क्वार्टर ऑफ 2024, फिस्कल ईयर 2024। तो ऑप्शन सी यहाँ पर ठीक रहेगा। नेक्स्ट है RBI, इन्होंने रिवाइज किया PIDF स्कीम को, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड स्कीम को। इसके अंदर आपने देखा होगा हर दुकान पे आपके बारकोड के साथ साथ एक साउंड बॉक्स लगा होता है, राइट? वो साउंड बॉक्स क्या काम का होता है कि जब भी आप पेमेंट करेंगे तो जो आपका ऑनर है उनको पता लग जाए कि आपने पेमेंट कर दिया एंड वो वॉइस करता है। तो ऐसे साउंड बॉक्स को लगाने के लिए ना सरकार इंसेंटिव्स देती है, सरकार ही यहाँ पर सब्सिडी प्रोवाइड कराती है। तो ये है आपकी PIDF स्कीम, करेक्ट, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम इकोसिस्टम डेवलप कर सकें। सरकार के द्वारा ये कुछ यहाँ पे अमाउंट प्रोवाइड कराया जाता है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि RBI ने रिवाइज की PIDF इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम को, राइट, एंड एक्सटेंडेड द डेडलाइन अंटिल डैश। तो डेडलाइन कब तक एक्सटेंड कर दिया है? तो 31 दिसंबर 2025 तक इस डेडलाइन को एक्सटेंड कर दिया गया है। नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली साइन किया एक 5,336 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट विद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस टू प्रोक्योर इलेक्ट्रॉनिक फ्यूजेस फॉर द इंडियन आर्मी? इंडियन आर्मी के लिए इलेक्ट्रॉनिक फ्यूजेस को प्रोक्योर करने की बात की गई, जिसके लिए अभी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया 5,336 करोड़ रुपए का। किस कंपनी के साथ? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ, राइट। और ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, याद रखेंगे, ये जो मैन्युफैक्चर करेंगे इन इलेक्ट्रिक फ्यूजेस को वो करेगी पुणे महाराष्ट्र में। एंड इसी के साथ साथ एक नागपुर में भी प्लांट सेटअप किया जा रहा है, वहाँ पे इन दोनों जगह पर ही आपके इलेक्ट्रिक फ्यूजेस को मैन्युफैक्चर किया जाएगा। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रिसेंटली स्worn इन एज द 14th चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान? राजस्थान के 14th चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं? तो कौन बने अब 14th चीफ मिनिस्टर? वो है भजन लाल शर्मा। भजन लाल शर्मा किन को रिप्लेस करेंगे? तो ये अशोक गहलोत को रिप्लेस करेंगे, जो कि 3 बार चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं राजस्थान के। ठीक है, तो 14th चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान भजन लाल शर्मा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्सरसाइज एस्त्रा शक्ति 2023 जो दिसंबर में हुई? तो यहाँ पर ऑप्शन बी और ऑप्शन सी, ये दोनों आपके ठीक रहेंगे। ए गलत है, क्यों? क्योंकि ये जो एक्सरसाइज थी ना, एयरफोर्स स्टेशन श्रीलंका में, ओडिशा में नहीं बल्कि आंध्र प्रदेश में। अब आपका ऑप्शन ए बी सी तीनों ठीक रहेंगे यहाँ पे। अगर यहाँ पे आप देखें ऑप्शन बी कह रहा है ड्यूरिंग दिस एक्सरसाइज इंडियन एयरफोर्स ने शोकेस किया आकाश वेपन सिस्टम को, जो कि एक शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम रहेगा, बिल्कुल सही। इंडियन एयरफोर्स ने यहाँ पर फिर टेस्ट फायर किया समर एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को, जो कि एंगेज कर सकता है एरियल थ्रेट्स विद अ स्पीड रेंज ऑफ 2 to 2.5 मैक। तो तीनों ऑप्शन अब यहाँ पर आपके ठीक रहेंगे। नेक्स्ट, विच टीम वन द विजय हजारे ट्रॉफी फाइनल बाय डिफीटिंग राजस्थान मैन क्रिकेट टीम इन द फाइनल? सबसे पहले विजय हजारे ट्रॉफी किस गेम से होती है? ये क्रिकेट से होती है, ठीक। कौन सा एडिशन हुआ था अभी विजय हजारे ट्रॉफी का?
21st एडिशन हमें देखने को मिला था विजय हजारे ट्रॉफी का। 23 नवंबर से 16 दिसंबर के बीच में था। 38 टीम्स ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था और टोटल 135 मैचेस खेले गए थे। ठीक है, और पूछा जा रहा है कि किस टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी जीत ली है इस बार, राजस्थान को फाइनल्स में हरा के। तो हरियाणा के द्वारा, और ये फॉर द फर्स्ट टाइम हरियाणा के द्वारा यहाँ पे विजय हजारे ट्रॉफी जीत ली गई है राजस्थान टीम को फाइनल में हराकर। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ 39 लेवरेजिंग डायस्पोरा फाइनेंसेस फॉर प्राइवेट कैपिटल मोबिलाइजेशन रिलीज बाय वर्ल्ड बैंक इन दिसंबर, डैश कंट्री हैज टॉप्ड द रेमिटेंस चार्ट विद एन एस्टिमेटेड इनवर्ड रेमिटेंस फ्लो ऑफ $125 बिलियन। तो देखो, इनवर्ड रेमिटेंस होता है एक होता है आउटवर्ड रेमिटेंस। इनवर्ड रेमिटेंस होता है जब पैसा दुनिया से हमारे इंडिया में आ रहा हो, तो ये हो जाता है इनवर्ड रेमिटेंस। आउटवर्ड रेमिटेंस होता है जब इंडिया का पैसा दूसरी कंट्रीज में बाहर जा रहा हो। तो अभी इंडिया ने टॉप किया है इनवर्ड रेमिटेंस में, $125 बिलियन का यहाँ पे इनवर्ड रेमिटेंस हमें देखने को मिला, जो कि हाईएस्ट है वर्ल्ड में। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा एक लोन अग्रीमेंट साइन किया गया कितनी जापानीज येन का, टू कंटिन्यू फाइनेंसिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ 82 किलोमीटर लॉन्ग दिल्ली मेरठ RRTS सिस्टम को यहाँ पे डेवलप करने के लिए। अभी कितना अमाउंट यहाँ पे लोन अग्रीमेंट साइन किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ? तो अमाउंट रहेगा ये आपका 37 बिलियन जापानीज येन। इसको कन्वर्ट करें तो ये अमाउंट आ जाता है $250 मिलियन। ठीक है, 82 किलोमीटर लंबा दिल्ली मेरठ RRTS सिस्टम को डेवलप करने के लिए। नेक्स्ट आ जाता है अब्दुल फतेह अल सीसी, इनको रिलेक्ट कर लिया गया एज द प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट फॉर द 3rd टर्म, तीसरी टर्म के लिए इनको यहाँ पे अपॉइंट कर लिया गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट एडिशन ऑफ खेलो इंडिया पैरा गेम्स हेल्ड इन न्यू दिल्ली इन दिसंबर 2023। तो अगर यहाँ पे बात करें तो ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी ठीक रहेगा। ए ऑप्शन गलत है, क्योंकि उत्तर प्रदेश ने यहाँ पे टॉप नहीं किया मेडल टैली में, बल्कि हरियाणा ने यहाँ पे टॉप किया इन द मेडल टैली विद 105 मेडल्स, 40 गोल्ड, 39 सिल्वर और 26 ब्रॉन्ज मेडल के साथ। ये इनॉग्रल एडिशन था खेलो इंडिया पैरा गेम्स का, न्यू दिल्ली में हुआ था और हरियाणा ने टॉप कर लिया। शीतल देवी जो जम्मू कश्मीर की हैं, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता इन द ओपन कैटेगरी ऑफ कंपाउंड आर्चरी इवेंट। फिर भाविना पटेल गुजरात की हैं, इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता इन द वीमेन सिंगल कैटेगरी ऑफ द क्लास 4 टेबल टेनिस इवेंट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज फ्रॉम इंडिया have recently won the FIH का मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर एंड FIH का वीमेंस गोलकीपर ऑफ द ईयर टाइटल? तो अगर मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर टाइटल की मैं बात करूं वो रहेंगे हार्दिक सिंह, वीमेंस गोलकीपर ऑफ द ईयर की मैं बात करूंगा तो वो रहेंगी सविता पूनिया। तो ऑप्शन 2 यहां पर बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अभी एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कितने अमाउंट का विद मडगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ 6 नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल, जो कि इंडियन कोस्ट गार्ड को यहाँ पे डिलीवर की जाएंगी। ये 6 नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल। पूछा जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने मडगांव डॉक बिल्डर्स लिमिटेड के साथ कितने अमाउंट का ये टाई अप साइन किया, कितने अमाउंट का ये आपका कॉन्ट्रैक्ट रहेगा? तो याद रखेंगे अमाउंट रहेगी 1614.89 करोड़ रुपीस का ये कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं इसरो ने अभी 9th एडिशन ऑफ लीफ एरिक्सन अवार्ड को जीत लिया फॉर इट्स डैश मिशन। सो चंद्रयान 3 मिशन के लिए अभी इसरो ने यहाँ पर 9वां एडिशन ऑफ लीफ एरिक्सन अवार्ड को जीत लिया है। राइट, मार्क करके चलेंगे। नेक्स्ट आ जाता है 17वें एमिर कौन अपॉइंट किए गए हैं कुवैत के, हु हैज बीन स्worn इन एज द 17th एमिर ऑफ कुवैत? तो वो रहेंगे शेख मशल अल अहमद अल ज़ुबैर अल सबा। ये 17वें एमिर किंग अपॉइंट किए गए हैं कुवैत के। नेक्स्ट, फर्स्ट एवर UN वर्ल्ड बास्केटबॉल डे ऑब्जर्व किया गया अक्रॉस द ग्लोब कब? तो पहली बार वर्ल्ड में 2023 में ये UN वर्ल्ड बास्केटबॉल डे ऑब्जर्व किया गया। और कब ऑब्जर्व किया गया? 31 दिसंबर 2023 को पहली बार इसको ऑब्जर्व किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा ठीक है विद रिस्पेक्ट टू 5th लीड्स सर्वे रिपोर्ट, जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स पीयूष गोयल के द्वारा रिलीज की गई दिसंबर 2023 में। तो ये 5th लीड्स रिपोर्ट सर्वे रिपोर्ट के हिसाब से देखें तो तीनों ऑप्शन यहां पर आपके बिल्कुल सही आ जाते हैं। 13 स्टेट्स एंड यूटी, जिसमें से 11 स्टेट्स और 2 यूटीज, इनको कैटेगराइज किया है एंड हैव बीन नेम्ड एज अचीवर्स इन द लीड्स सर्वे रिपोर्ट।
Andhra Pradesh, Gujarat, Karnataka, Tamil Nadu. They are categorized as achievers among the coastal states in this fifth lead survey report. And Haryana, Punjab, Telangana, UP इनको categorize किया achievers among the landlocked states under this fifth lead survey report. तीनों ऑप्शन यहाँ पे ठीक रहेंगे. नेक्स्ट आ जाता है जीका, जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी. इन्होंने एक अग्रीमेंट साइन किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, राइट, टू ऑफर जापानीज ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंट लोन्स टोटलिंग अमाउंट कितना 415,301 Japanese yen for the construction of Mumbai Ahmedabad high speed rail as well as sustainable development goals in India. तो दो प्रोजेक्ट्स रहेंगे. पहला है मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट जिसमें हम देखेंगे ऑलमोस्ट 400,000 जैपनीज येन यूज किए जाएंगे, और दूसरे प्रोजेक्ट के लिए जो कि है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए इसमें बचा हुआ अमाउंट 15,301 जैपनीज येन को यूज किया जाएगा. नेक्स्ट, नेम द पर्सनैलिटी हु हैज recently been appointed as the first ever global brand ambassador of Bisleri International Private Limited. तो बिस्लरी क्या है हम जानते हैं, ये एक वाटर बॉटल ब्रांड है, पानी मिलता है, करेक्ट. तो बिस्लरी ब्रांड की अभी रिसेंटली कौन बनी है नई ब्रांड एम्बेसडर, वो है दीपिका पादुकोण. मार्क करेंगे, इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट, किस बैंक ने या ऑर्गेनाइजेशन ने अभी एक लोन अप्रूव किया $300 मिलियन का मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के फॉर द प्रोजेक्ट तमिलनाडु क्लाइमेट रेजिलियंट अर्बन डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए. तो तमिलनाडु के क्लाइमेट रेजिलियंट अर्बन डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए अभी 300 मिलियन का एक लोन अप्रूव किया गया है. किस बैंक के द्वारा? तो ये लोन मिलेगा इंडिया को वर्ल्ड बैंक के द्वारा. देखो हमेशा याद रखना, अगर हम कोई डेवलपमेंट कर रहे हैं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहे हैं, हम ग्रोथ के लिए पैसा उधार ले रहे हैं, तो वर्ल्ड बैंक देगा. IMF पैसा देगा जब आपको कहीं से लोन चुकाना है, कहीं पे कोई दिक्कत आ रही है उसके लिए. ठीक है. नेक्स्ट है अनुराग सिंह ठाकुर. इन्होंने अनवेल किया लोगो, जर्सी, थीम सॉन्ग ऑफ 6th खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो कि चेन्नई तमिलनाडु में होंगे. तो ये छठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो मैस्कॉट रहेगा उसका नाम पूछा जा रहा है आपसे, क्या रहेगा? वो है वीरा मंगाई, राइट. अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा लॉन्च किया गया छठा एडिशन रहेगा ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स का. और कहां पर होंगे खेलो इंडिया यूथ गेम्स? चेन्नई तमिलनाडु में. नेक्स्ट, अमेरिकन इकोनॉमिस्ट डैश हु वन द 1987 नोबेल प्राइज इन इकोनॉमीज passed away. तो अमेरिकन इकोनॉमिस्ट डैश हु वन द 1987 नोबेल प्राइज इन इकोनॉमीज passed away, क्या नाम रहेगा उनका? वो है रॉबर्ट मैटॉन सोलो, राइट. ये वो अमेरिकन इकोनॉमिस्ट हैं जो 1987 में जिनको नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स से सम्मानित किया गया था, उनका भी रिसेंटली निधन हो गया है. नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ कीनिया विलियम समोई रूतोज विजिट टू इंडिया इन दिसंबर. अगर यहाँ पर ऑप्शन देखें तो तीनों ऑप्शन आपके यहाँ पे बिल्कुल ठीक रहेंगे. इंडिया ने अनाउंस किया $250 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट कीनिया को हेल्प करने के लिए ताकि उनके एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप किया जा सके. देन इंडिया और कीनिया ने 5 MOU साइन किए इन वेरियस सेक्टर सच एज स्पोर्ट, कल्चर, एजुकेशन, डिजिटल सॉल्यूशंस एक्सेट्रा. देन इंडिया और कीनिया ने अनवेल किया एक ब्लूप्रिंट ऑन जॉइंट विजन स्टेटमेंट ऑन मैरीटाइम कॉर्पोरेशन इन द इंडियन ओशन रीजन बाहरी. नेक्स्ट है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी पूछा गया कौन सी है. ये अभी एक रिपोर्ट रिलीज की गई, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लाइफ इंश्योरर्स 2023 S&P स्टैंडर्ड्स एंड पुअर ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस के द्वारा ये रिलीज किया गया. यहाँ पे पूछा जा रहा है इंडिया का LIC हैज बीन नेम्ड एज द डैश लार्जेस्ट इंश्योरेंस, कौन सी पोजीशन पे रहेगा? और अलायंस SE ये जर्मनी का है, ये कौन सी पोजीशन पे रहेगा? तो याद रखेंगे LIC ये 4th लार्जेस्ट लाइफ इंश्योरेंस है इन द वर्ल्ड, करेक्ट, चौथा. और वहीं पे अगर मैं बात करूं अलायंस SE ये जर्मनी का है, इन्होंने टॉप किया इन दिस लिस्ट, करेक्ट. ये लार्जेस्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है इन द वर्ल्ड, वेयर एज LIC की बात करें 4th नंबर पे आता है. LIC की वैल्यूएशन देखें तो $503.7 बिलियन की रहेगी. वहीं पे अलायंस SE की अगर वैल्यूएशन देखें तो $750.2 बिलियन की रहेगी. तो राइट ऑप्शन यहां पे बन जाता है ऑप्शन सेकंड. नेक्स्ट आ जाते हैं, टाइम मैगजीन के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया एंड वो पहली वीमेन बनी टू अपीयर ट्वाइस ऑन द पर्सन ऑफ द ईयर कवर. कौन रहेंगी? वो है टेलर स्विफ्ट. काफी फेमस सिंगर हैं टेलर एलिसन स्विफ्ट. ये इनको भी टाइम मैगजीन 2023 की पर्सन ऑफ द ईयर रही है, एज वेल एज ये वो पहली वीमेन बन गई हैं जो 2 बार ट्वाइस पर्सन ऑफ द ईयर के कवर पे आई हैं, टेलर स्विफ्ट. नेक्स्ट, who has recently been sworn in as the Chief Minister of Telangana.
तो तेलंगाना के नए चीफ मिनिस्टर कौन अपॉइंट किए गए हैं, वो हैं अनुमुला रेवंत रेड्डी। करेक्ट। ये किनको रिप्लेस करेंगे, इन्होंने किनको रिप्लेस किया टू बी द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना, वो है के चंद्रशेखर राव। राइट। फिर इसी के साथ साथ एक जो चीज और याद रखेंगे, अगर पूछा जाए यहीं पर कि डेप्टी चीफ मिनिस्टर कौन है, ये सॉरी सेकंड चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं, तो वो है अनुमुला रेवंत रेड्डी। फर्स्ट कौन थे, के चंद्रशेखर। राइट। चलिए फिर इसी के साथ साथ नेक्स्ट आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द कैबिनेट अप्रूवल्स ऑन 8th ऑफ दिसंबर। कैबिनेट अप्रूवल्स की यहां पे बात की जा रही है, तो ऑप्शन ए बी सी में से कौन सा गलत रहेगा, ऑप्शन ए गलत है, बाकी बी और सी ठीक रहेंगे हमें, क्योंकि इनकरेक्ट बताना था। इनकरेक्ट ए क्यों रहेगा, क्योंकि यूनियन कैबिनेट ने मैंडेटरी कर दिया कि 100% ऑफ द फूड ग्रेन्स आपके जूट बैग्स में पैक होंगे एंड 50% ऑफ द शुगर जूट बैग्स में पैक होगा। नहीं, तो 50% नहीं, 50% 20% ऑफ द शुगर यहाँ पे जूट बैग्स में पैक होगा, तो ए ऑप्शन अब ठीक है। बी कह रहा है कि यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया एडिशनल एलोकेशन ऑफ 2500 करोड़ रुपए फॉर द कॉन्टिन्यूएशन ऑफ द इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम टिल 30th ऑफ जून एंड इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम ये ज्वाइंटली मॉनिटर की जाएगी बाय डीजीएफटी एंड आरबीआई। अब तीनों ऑप्शन आपके ठीक रहेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया फर्स्ट अर्बन फ्लड मिटिगेशन प्रोजेक्ट वर्थ 561.29 करोड़ रुपीस फॉर द इंटीग्रेटेड अर्बन फ्लड मैनेजमेंट एक्टिविटीज फॉर चेन्नई बेसन प्रोजेक्ट, तो ऑप्शन सी आपका यहां पर बिल्कुल ठीक रहेगा। नेक्स्ट है डीपीआईआईटी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इन्होंने कोलैबोरेट किया किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ टू इंप्रूव द इंडियाज लॉजिस्टिक एफिशिएंसी। इंडिया की लॉजिस्टिक एफिशिएंसी को इंप्रूव करने के लिए अभी डीपीआईआईटी ने किसके साथ कोलैबोरेट किया है, तो वो है वर्ल्ड बैंक के साथ। वर्ल्ड बैंक के साथ यहाँ पे कोलैबोरेट किया गया ताकि जो लॉजिस्टिक सेक्टर है, जो ट्रांसपोर्ट है बिटवीन टू लोकेशंस किसी भी प्रोडक्ट के लिए, उसको इंप्रूव करने के लिए, ताकि कॉस्ट कटिंग हो सके एंड जो इन्फ्लेशन है वो ज़्यादा ना बढ़े एंड ये ईजी हो सके बिजनेसमैन को, ताकि वो अपना बिजनेस कैरी आउट कर सके। नेक्स्ट है आरईसी लिमिटेड, इन्होंने साइन किया अ डैश लोन अग्रीमेंट विद केएफडब्ल्यू डेवलपमेंट बैंक जो कि जर्मनी का है टू रिफॉर्म द डिस्कॉम इन इंडिया। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को रिफॉर्म लाने के लिए यहाँ पर किस आरईसी ने किसके साथ अभी कितने अमाउंट का लोन अग्रीमेंट साइन किया, तो आरईसी ने किसके साथ किया, वो है केएफडब्ल्यू डेवलपमेंट बैंक जो कि कहाँ का है, जर्मनी का है। कितने अमाउंट का ये अग्रीमेंट साइन किया गया, तो 200 मिलियन यूरो का ये अग्रीमेंट यहाँ पर साइन किया गया। राइट ऑप्शन, ऑप्शन 3। नेक्स्ट आ जाते हैं, हु हैज रिसेंटली बीन स्वॉर्न इन एज द 6th चीफ मिनिस्टर ऑफ मिजोरम। मिजोरम के छठे चीफ मिनिस्टर कौन अपॉइंट किए गए हैं, वो है लाल दुहोमा। करेक्ट, 74 हैं ये लाल दुहोमा, और ये नए चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किए गए हैं, छठे चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किए गए हैं कहां के, मिजोरम के। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच, तो यहाँ पे सभी ठीक है, सिर्फ ऑप्शन 5 गलत है, क्योंकि यहाँ पे स्मृति ईरानी जी को एक्सटर्नल चार्ज नहीं दिया गया है, बल्कि ये कहाँ की है, मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन चाइल्ड एंड डेवलपमेंट, और सभी बाकी को यहाँ पर एक्सटर्नल चार्ज दिया गया। अर्जुन मुंडा को यूनियन मिनिस्टर फॉर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर्स वेलफेयर, सुश्री शोभा जी को मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज का, राजीव चंद्रशेखर को मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, भारती प्रवीण पावर जी को मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। नेक्स्ट, द डैश एडिशन ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज विनबैक्स बिटवीन इंडिया एंड वियतनाम अभी हनोई वियतनाम में हुई दिसंबर 2023 में, तो कौन सा एडिशन था इस विनबैक्स एक्सरसाइज का जो कि इंडिया और वियतनाम के बीच में हुई हनोई वियतनाम में दिसंबर 2023 में, तो ये 4th एडिशन था, चौथा एडिशन था इस विनबैक्स एक्सरसाइज का। नेक्स्ट, किस बैंक ने भी रिसेंटली लॉन्च किया एन एक्सक्लूसिव सेविंग बैंक अकाउंट नेम्ड नारी शक्ति सेविंग अकाउंट फॉर वीमेंस, तो ये नारी शक्ति सेविंग अकाउंट फॉर वीमेंस पूछा जा रहा है किस बैंक के द्वारा यहाँ पे लॉन्च किया गया, तो बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इसको यहाँ पे लॉन्च किया गया, जो कि एक सेविंग बैंक अकाउंट रहेगा। 18 साल से ऊपर की वीमेंस के लिए ये लॉन्च किया गया है। करेक्ट। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इन्होंने अप्रूव किया परचेज ऑफ 70,000 मोर सेमी ऑटोमेटिक असॉल्ट राइफल्स फ्रॉम यूएसए की एक कंपनी जिसका नाम रहेगा सेग सौर इनकॉर्पोरेशन। राइट, इंडियन आर्मी के लिए इनको यहाँ पे प्रोक्योर किया गया, 800 करोड़ रुपए की लागत से ये प्रोक्योर की गई हैं। तो याद रखेंगे, सेमी ऑटोमेटिक असॉल्ट राइफल 70,000 सेमी ऑटोमेटिक असॉल्ट राइफल्स प्रोक्योर की गई यूएसए बेस्ड कंपनी सेग सौर इनकॉर्पोरेशन से, इंडियन आर्मी के लिए की गई और 800 करोड़ की लागत से प्रोक्योर की गई है। नेक्स्ट, हु हैज बीन रिसेंटली इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पोलैंड, पोलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर कौन अपॉइंट किए गए हैं, वो हैं डोनाल्ड टस्क। नेक्स्ट,
मोहन यादव वॉज स्वॉर्न इन एज द डैश चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश। तो मोहन यादव 19वें चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किए गए हैं मध्य प्रदेश के। मोहन यादव किनको रिप्लेस करेंगे? शिवराज सिंह चौहान को रिप्लेस करेंगे टू बी द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, मार्क करेंगे। देन राजेंद्र शुक्ला एंड जगदीश देवड़ा, ये दोनों यहाँ पे डेप्टी चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किए गए हैं मध्य प्रदेश के। एंड नए चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं? मोहन यादव। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू मर्सर्स क्वालिटी ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2023, इंडिया की वो कौन सी सिटी है जो कि बेस्ट सिटी आ जाती है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ लिविंग, जिसकी रैंक 153 रही ग्लोबली? वो है हैदराबाद। हैदराबाद तेलंगाना। और ये छठे टाइम फॉर द 6th टाइम इंडिया की सिटीज में इसने टॉप किया। राइट, हैदराबाद तेलंगाना ने। वहीं पे पूछा गया वियतना ऑस्ट्रिया, नॉट ऑस्ट्रेलिया, वियना ऑस्ट्रिया, इन्होंने टॉप किया फॉर द कौन से कॉन्जिक्यूटिव टाइम? फॉर द 11th कॉन्जिक्यूटिव टाइम इन्होंने यहाँ पे टॉप किया इन दिस लिस्ट इन द क्वालिटी ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग में मर्सर की। इंडिया की हैदराबाद तेलंगाना सिटी जो है, हैदराबाद सिटी जो कि तेलंगाना की कैपिटल भी है, वो छठे टाइम टॉप पर रही इन इंडियन सिटीज एंड ग्लोबली उसकी रैंक रही 153। Next, name the bank that has recently recognized as the top performer of 2023 climate assessment for the Financial Institutions Award for Climate Reporting. तो वो रहेगी, बताइए कौन सा बैंक? वो है फेडरल बैंक। नेक्स्ट, इन दिसंबर एशियन डेवलपमेंट बैंक ने रेज किया उनका इकोनॉमिक फॉरकास्ट फॉर इंडिया टू डैश फॉर फिस्कल ईयर 24। तो फिस्कल ईयर 24 के लिए जो जीडीपी प्रोजेक्ट की गई है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इंडिया की, वो कितनी है? 6.7% की। नेक्स्ट, हु हैज रिसेंटली स्वॉर्न इन एज द 4th चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़? छत्तीसगढ़ के चौथे चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं? वो है विष्णुदेव साय। राइट, विष्णुदेव साय, ये बीजेपी से बिलोंग करते हैं एंड ही हैज बीन स्वॉर्न इन एज द 4th चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़। फिर विनोद साय ने किनको रिप्लेस किया? भूपेश बघेल को यहाँ पे रिप्लेस करके ये नए 4th चीफ मिनिस्टर बन गए हैं छत्तीसगढ़ के। नेक्स्ट, इन दिसंबर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अप्रूव किया कितने अमाउंट का प्रपोजल टू परचेज अबाउट 6400 रॉकेट्स फॉर पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम के लिए। तो कितने यहाँ पे रॉकेट्स परचेज किए गए? 6400 रॉकेट परचेज किए गए। कितनी अमाउंट की लागत से? 2800 करोड़ की लागत से ये परचेज किए गए। करेक्ट, पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स के लिए 6400 रॉकेट्स। नेक्स्ट, इंडियन नेवल शिप का क्या नाम रहेगा जिसको अभी कमीशन किया गया बाय द इंडियन नेवी एट द नेवल डॉकयार्ड इन विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश? तो वो है INS तरमुगली। राइट, ये वो इंडियन नेवल शिप है जिसको कमीशन किया गया बाय इंडियन नेवी एट द नेवल डॉकयार्ड एट विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट आ जाता है एज पर द रिपोर्ट वीमेन एम्पावरमेंट एंड लाडली बहना 2023 जो भी रिलीज की गई SBI के ERD के द्वारा, इकोनॉमिक रिसर्च डिपार्टमेंट के द्वारा। यहाँ पे बताया गया कि जो वीमेन वोटर्स रहेंगी ना, उनकी तादाद ज़्यादा हो जाएगी एज कम्पेयर टू दैट ऑफ मैन वोटर्स। कब तक? बाय 2029 इलेक्शन तक। 2029 के जो इलेक्शंस होंगे, जनरल इलेक्शंस होंगे, उसमें जो वीमेन वोटर्स की तादाद होगी वो ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू दैट ऑफ मैन वोटर्स। अगर देखा जाए एक्सपेक्टेड है कि 73 करोड़ यहाँ पे वोटर्स आएंगे, जिसमें से 37 करोड़ वीमेन वोटर्स रहेंगी और 36 करोड़ आपके मैन वोटर्स रहेंगे। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज have been honored with Indira Gandhi Peace for a Prize for Peace, Disarmament and Development for 2023? तो किनको यहाँ पे सम्मानित किया गया इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, डिसआर्ममेंट एंड डेवलपमेंट फॉर 2023 के लिए? कौन रहेंगे वो हैं आपके डैनियल बेरनबोइम एंड अली अबू आबाद। इन दोनों को यहाँ पे सम्मानित किया गया इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, डिसआर्ममेंट एंड डेवलपमेंट 2023 के लिए। Next, which of the following personalities have recently become the first Indian to be inducted into the International Tennis Hall of Fame? तो वो पहले इंडियंस कौन बने हैं? 2 हैं, वो याद रखेंगे कौन कौन? लिएंडर पेस एंड विजय अमृतराज। ये दोनों वो पहले इंडियंस बन गए जिनको इंडक्ट किया गया टू द इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम। नेक्स्ट, नोवाक जोकोविच, ये सर्बिया से बिलोंग करते हैं एंड हैज बीन नेम्ड एज द मेंस इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन वर्ल्ड चैंपियन फॉर द विच टाइम? 8वीं बार, 8th टाइम नोवाक जोकोविच यहाँ के चैंपियन बन गए हैं, वर्ल्ड चैंपियन, ITF वर्ल्ड चैंपियन। वहीं पे अगर मैं बात करूँ बेलरूशियन टेनिस प्लेयर एरियाना सेबलंका, ये फर्स्ट टाइम यहाँ पे ITF वर्ल्ड चैंपियन बनी है फॉर द फर्स्ट
टाइम। तो राइट ऑप्शन बनता है ए, ऑप्शन 4, 8th टाइम नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया से हैं, एंड वीमेंस कैटेगरी में अरियाना सेबलंका, ये बेलारूस से हैं और ये पहली बार बनी है। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द वर्ल्ड एड्स डे रिपोर्ट रिलीज्ड इन नवंबर। अगर इसके हिसाब से देखें तो कौन कौन से ऑप्शन यहाँ पे ठीक रहेंगे, तो तीनों ऑप्शन यहाँ पर आपके बिल्कुल सही रहेंगे। जॉइंट यूनाइटेड नेशंस प्रोग्राम ऑन HIV एड्स, ये रिलीज किया गया, हैज रिलीज द वर्ल्ड एड्स डे रिपोर्ट टाइटल लेट्स कम्युनिटीज लीड। तो रिपोर्ट का नाम बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन ठीक रहेगा। ये रिपोर्ट बताती है कि एड्स कैन बी एंडेड एज अ पब्लिक हेल्थ थ्रेट बाय 2030 इफ ओनली फ्रंटलाइन कम्युनिटीज गेट फुल सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट्स एंड डोनर्स। तो बिल्कुल सही। सी कह रहा है द रिपोर्ट वाज लॉन्च्ड इन लंदन यूके एट अ वर्ल्ड एड्स डे इवेंट होस्टेड बाय स्टॉप एड्स जो कि एक सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है। तो बिल्कुल सही, तीनों ऑप्शन यहाँ पे ठीक रहेंगे। नेक्स्ट आ जाता है हु हैज रिसेंटली वन द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ फ्रांस जो कि है शेवलियर दे लीजन दे ऑनर फॉर द कंट्रीब्यूशन इन प्रमोटिंग स्पेस कॉपरेशन बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस। तो ये एक इसरो की रियॉन्ड साइंटिस्ट हैं, VR ललिथम्बिका जी, राइट। इनको यहाँ पर फ्रांस के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ फ्रांस से सम्मानित किया गया बिकॉज ऑफ आवर कंट्रीब्यूशन इन स्पेस कॉपरेशन बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस के बीच में जो स्पेस कॉपरेशन है उसको बढ़ावा देने के लिए इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। और ये सेकंड इसरो की साइंटिस्ट बनी है विद दिस अवार्ड। इससे पहले AS किरण कुमार फॉर्मर इसरो के चेयरमैन थे, उनको इस अवार्ड से 2019 में सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट, SBI Mutual Fund received the approval from RBI for acquiring aggregate holding of up to 9.9% of the paid up share capital of Dash Bank। तो याद रखेंगे SBI Mutual Fund को अप्रूवल मिल गया RBI से for acquiring the aggregate holding of up to 9.99% of the paid up share capital of करूर वसाय बैंक। तो ऑप्शन बी सही रहेगा। Next, name the company that has recently launched the 3 anti-submarine warfare shallow warcraft project, Indian naval ship Mahi, Indian naval ship Malwan and Indian naval ship Mangrol at their Kochi yard in Kerala for the Indian Navy। तो किसके द्वारा ये लॉन्च किया गया है, तो याद रखेंगे ये लॉन्च किया गया CSL कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। 3 इंडियन नेवल शिप्स को यहाँ पे लॉन्च किया गया है, माही, मलवान एंड मंगरोल, कोची केरला में फॉर इंडियन नेवी। नेक्स्ट आ जाता है सेबी ने अभी एक्सटेंड की टाइमलाइन ऑफ द लिंकिंग ऑफ द सेबीज कंप्लेंट रिड्रेसल प्लेटफॉर्म विद द ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पोर्टल फ्रॉम 4th of December टू डैश। तो 4 दिसंबर पहले डेडलाइन थी 2023 की, अब उसको एक्सटेंड करके 1 अप्रैल 2024 कर दिया है फॉर द लिंकिंग ऑफ स्कोर्स प्लेटफॉर्म विद ODR। स्कोर्स क्या है, सेबी कंप्लेंट रिड्रेसल प्लेटफॉर्म एंड ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पोर्टल को कंबाइन करने के लिए जो डेडलाइन थी 4 दिसंबर 2023 थी, उसको एक्सटेंड कर दिया गया कब तक, 1 अप्रैल 2024 तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया। नेक्स्ट, इन दिसंबर इंडिया वॉज रीइलेक्टेड टू द I repeat, in December, India was re-elected to the Dash Organization Council under the Category B states for 2024-25 biennium। तो यहाँ याद रखेंगे इंडिया को अभी रिलेक्ट किया गया टू IMO क्या है, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन में अंडर कैटेगरी बी, राइट। और यहाँ पे कैटेगरी बी में इलेक्ट किया गया, ये भी याद रखेंगे। इंडिया को 157 वोट्स मिले थे आउट ऑफ 167 टोटल मेंबर वोट्स में से। नेक्स्ट आ जाता है हु हैज रिसेंटली बिकेम द इंडियाज 84th ग्रैंड मास्टर बाय क्रॉसिंग 2500 ELO लाइव रेटिंग्स इन द 4th एडिशन ऑफ द लॉबग्रेट ओपन चेस टूर्नामेंट 2023। तो किनको अभी रिसेंटली इंडिया के 84th ग्रैंड मास्टर बनी है, वो बनी है वैशाली रामेश बाबू। ये है सिस्टर ऑफ आर प्रगनंदा एंड वैशाली रामेश बाबू, ये पहला ब्रदर सिस्टर ड्यूओ बना है जो कि ग्रैंड मास्टर बने हैं इंडिया के। Next, what is the India's rank in the International Institute for Management Development's IMD's 7th edition of World Digital Competitiveness Ranking 2023 released in December 2023। तो इंडिया की IMD की जो 7th एडिशन रिपोर्ट है ऑफ वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग, वहां पे इंडिया की क्या रैंक रहेगी, तो इंडिया की रैंक आ जाती है, क्या रैंक रहेगी, तो वो है 49। और फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा रहेगा, वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियंस हैज हैव रिसेंटली फीचर्ड इन द फोर्ब्स एशिया 2023 हीरोज ऑफ फिलैंथ्रोपी लिस्ट। तो कौन यहाँ पे लिस्ट किए गए हैं, निखिल कामत, खुशहाल पाल सिंह एंड नंदन नीलकर्णी, राइट। तो ये तीनों को यहाँ पे लिस्ट किया गया है इन द फोर्ब्स एशिया 2023 हीरोज ऑफ फिलैंथ्रोपी लिस्ट। यहाँ पे टोटल 15 फिलैंथ्रोपिस्ट लिस्ट किए गए थे फ्रॉम द एशिया पैसिफिक रीजन, उनमें से ये 3 आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शेयर होल्डिंग इन जियो पेमेंट बैंक लिमिटेड रिड्यूस्ड टू डैश अमाउंट इन द फाइनेंशियल ईयर 23। तो याद रखेंगे 23% तक यहाँ पे रिड्यूस हो गई है SBI की शेयर होल्डिंग इन द जियो पेमेंट बैंक्स लिमिटेड।
नेक्स्ट, नेम द कंट्री दैट हैज रिसेंटली इलेक्टेड टू रिप्रेजेंट द एशियन रीजन इन द एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ द कॉडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन। तो कौन सी कंट्री रहेगी वो? नेम द कंट्री जिनको इलेक्ट किया गया टू रिप्रेजेंट द एशियन रीजन इन दिस एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ सीएसी, वो है हमारी इंडिया। राइट, मार्क करके चलेंगे। नेक्स्ट आ जाता है, नेम द फर्स्ट सर्वे वेसल शिप दैट वाज रिसेंटली डिलीवर्ड टू द इंडियन नेवी बाय जीआरएससी। तो जीआरईसी के द्वारा जो पहला सर्वे वेसल डिलीवर किया गया था टू इंडियन नेवी वो है आईएनएस संध्याक। राइट, आईएनएस संध्याक, ये वन ऑफ फर्स्ट ऑफ द 4 सर्वे वेसल है जो कि डिलीवर किए जाएंगे टू द इंडियन नेवी। करेक्ट, मार्क करके चलेंगे, इंपॉर्टेंट। जीआरएससी के द्वारा ये डेवलप करे गए हैं। नेक्स्ट आ जाता है, इन दिसंबर डैश बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू गेट द हाईएस्ट नंबर ऑफ जीआई टैग्स, जो कि है 18 इन अ सिंगल डे। तो किस स्टेट को मिले हैं जीआई टैग? 18 जीआई टैग इन अ सिंगल डे, वो है उत्तराखंड को। 18 जीआई टैग्स मिले थे इन द सिंगल डे। नेक्स्ट आ जाता है, नेम द कंट्री दैट हैज रिसेंटली बिकेम अ मेंबर ऑफ द बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम कंसोर्टियम लेड बाय द ग्लोबल लीडरशिप काउंसिल ऑफ द ग्लोबल एनर्जी अलायंस फॉर पीपल एंड प्लैनेट। तो बेस्ट कंसोर्टियम का कौन सी कंट्री अभी मेंबर बन गई है? हमारी इंडिया अभी मेंबर बन गई है बेस्ट कंसोर्टियम की, जो कि है बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम कंसोर्टियम। नेक्स्ट, नेम द बैंक दैट रिसेंटली लॉन्च द परिवार अकाउंट फॉर सेविंग एंड करंट अकाउंट्स। तो नेम कौन सा बैंक रहेगा जिन्होंने लॉन्च किया परिवार अकाउंट फॉर सेविंग एंड करंट अकाउंट्स? तो वो है बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा लॉन्च किया गया है परिवार अकाउंट फॉर सेविंग एंड करंट अकाउंट। Next, which of the following personalities from India is not listed among the Forbes 2023 World's 100 Most Powerful Women published in 2023? तो अगर हम बात करें फोर्ब्स की वर्ल्ड्स 100 मोस्ट पावरफुल वीमेंस की लिस्ट में, इसमें से नीता अंबानी यहाँ पे लिस्ट नहीं की गई हैं। निर्मला सीतारमन, रोशनी नादर मल्होत्रा, सोमा मंडल एंड किरण मजूमदार शॉ, ये चारों यहाँ पर लिस्ट की गई इन द वर्ल्ड्स 100 मोस्ट पावरफुल वीमेन की लिस्ट में, जो कि फोर्ब्स के द्वारा रिलीज की गई। नेक्स्ट, नेम द कंपनी दैट रिसेंटली लॉन्च द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट कैपेबल मल्टी मॉडल एआई कॉल्ड जेमिनी। तो ये जेमिनी जो है, जो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? जेमिनी लॉन्च किया गया है गूगल के द्वारा। राइट, चैट जीपीटी किसका था? ओपन एआई का था चैट जीपीटी। राइट, मार्क करके चलेंगे। तो दोस्तों ये तो थे हमारे दिसंबर मंथ के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। राइट, अब आ जाते हैं कुछ और रिवीजन पार्ट पर जो कि आपके लर्निंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे एंड लर्निंग में काफ़ी ज़्यादा ही हेल्प करने वाले हैं, क्योंकि वन लाइनर्स भी होंगे यहाँ पे, कुछ एमसीक्यूज भी हैं, कुछ आपकी टॉपिक्स भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं। इसके अलावा कुछ और क्वेश्चंस देखें तो ज़रा बताओ, सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी ये कहाँ सेटअप की जा रही है? तेलंगाना में सेटअप की जा रही है सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी। 67th नेशनल स्कूल गेम्स, 67th नेशनल स्कूल गेम्स कहाँ पर हुए थे? न्यू दिल्ली में हुए। ठीक, फिर इसी के साथ साथ बताओ, अभी रिसेंटली अटल हेल्थ फेयर हुआ, किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया? वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी के द्वारा। हुआ कहाँ पर? लखनऊ में। ठीक, फिर उस पहली एयरलाइन का नाम बताओ, इंडिया की पहली एयरलाइन जिन्होंने 100 मिलियन पैसेंजर्स किए एक साल में। तो क्या नाम रहेगा एयरलाइन का? वो है इंडिगो। ठीक, फिर इसी के साथ साथ किस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी एक जनरेटिव एआई का स्टूडियो लॉन्च किया है बेंगलोर में? किसके द्वारा किया गया है? असेंचर के द्वारा। ठीक, फिर इसी के साथ साथ बताओ, पहला फर्स्ट इंटरनेशनल संघा फोरम कहाँ पे हुआ था? फर्स्ट इंटरनेशनल संघा फोरम ये हुआ बोधगया में, और किसके द्वारा कराया गया था, इनॉग्रेट किया गया? दलाई लामा जी के। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं फ्रेंड्स एक चीज़ और, मैं जब डेली बेसिस पे आपको होमवर्क क्वेश्चन देता हूँ ना, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ सभी बच्चे जो ये वीडियो देख रहे हैं ना उनका आंसर करेंगे। आज मैं देखता हूँ कि बहुत कम बच्चे यहाँ पे आंसर करते हैं होमवर्क क्वेश्चंस का, तो ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन दो, ज़्यादा से ज़्यादा आंसर कमेंट करो, इससे आपका हेल्प बहुत होगा आपको इसको रिविजन में। राइट, लर्निंग में आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडियाज फर्स्ट विंटर एक्सपीडिशन टू आर्कटिक वॉज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री? पहला विंटर एक्सपेडिशन है, क्यों? क्योंकि हम बात कर रहे हैं ये जो एक्सपेडिशन है फॉर रिसर्च, ये अभी जाएगा कब? नवंबर से मार्च तक। राइट, तो ये विंटर सीजन हो जाता है, और ये इंडिया का पहला ऐसा एक्सपेडिशन होगा जो इस टाइम पीरियड के दौरान जा रहा है, फ्रॉम नवंबर टू मार्च। राइट, पहला विंटर एक्सपेडिशन टू आर्कटिक किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया? तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। पहली चीज तो याद रखेंगे। किस बैंक ने अभी रिसेंटली लॉन्च किया इंडस्ट्री का पहला कम्युनिटी बैंकिंग प्रोग्राम फॉर डायमंड इंडस्ट्री? आई रिपीट, किस बैंक ने लॉन्च किया इंडस्ट्रीज फर्स्ट
कम्युनिटी बैंकिंग प्रोग्राम फॉर डायमंड इंडस्ट्री, तो वो है इंडसइंड बैंक। नेक्स्ट आ जाता है विच स्टेट्स टूरिज्म कंडक्टेड ट्रायल रन ऑफ गायरोकॉप्टर फॉर हिमालय एयर सफारी। तो हिमालय एयर सफारी के लिए एक गायरोकॉप्टर का ट्रायल रन हुआ, किस स्टेट में हुआ, ये हुआ आपका उत्तराखंड में, राइट। तो उत्तराखंड टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड ने अभी रिसेंटली इन पार्टनरशिप विद रजस एयरपोर्ट्स एंड एडवेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड कंप्लीट किया पहला गायरोकॉप्टर ट्रायल फ्लाइट एट द बैरागी कैंप इन हरिद्वार उत्तराखंड, करेक्ट। और इससे क्या होगा, उत्तराखंड टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड ने लॉन्च किया इंडिया का पहला हिमालयन एयर सफारी स्कीम यूजिंग दिस गायरोकॉप्टर, करेक्ट। तो ये आपके इससे क्या होगा, एक तो टूरिज्म है उसमें बढ़ावा देखने को मिलेगा, करेक्ट। अलग अलग फैसिलिटीज, अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी यहाँ टूरिस्ट को, ताकि उनको भी यहाँ पे घूमने में भी मजा आए, राइट। क्योंकि टूरिज्म में क्या होता है, बेसिकली लोग यहाँ घूमने आते हैं, एंजॉय करने आते हैं, टाइम स्पेंड करने आते हैं, राइट। तो बेटर फैसिलिटीज होंगी, बेटर अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे देखेंगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग भी अट्रैक्ट होंगे। तो उत्तराखंड टूरिज्म ने अभी ये कंडक्ट कराया ट्रायल रन ऑफ गायरोकॉप्टर फॉर हिमालयन एयर सफारी। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर स्पोर्ट्स के ऊपर। तो फोर्ब्स के द्वारा अभी वर्ल्ड की हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट लिस्ट रिलीज की गई 2023 की। आई रिपीट, फोर्ब्स के द्वारा वर्ल्ड्स हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट लिस्ट रिलीज की गई है 2023 के लिए। और यहाँ पे किन्होंने टॉप किया है, तो वो है ईगा स्वातिक, राइट। ईगा स्वातिक ने यहाँ पे टॉप किया, जो कि पॉलिश टेनिस प्लेयर हैं, करेक्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं ईगा स्वातिक पोलैंड की हैं, टेनिस से बिलोंग करती हैं, एंड 23.9 मिलियन डॉलर की इनकी अर्निंग रही 2023 में, करेक्ट। और यहीं पे अगर पीवी सिंधु की बात करें, ये 16वें नंबर पे आ जाती हैं, इनकी अर्निंग रही 7.1 मिलियन डॉलर की, राइट। बैडमिंटन प्लेयर है एंड इंडिया को ये रिप्रेजेंट करती हैं इन बैडमिंटन। नेक्स्ट आ जाते हैं मैनचेस्टर सिटी, ये एक यूके का फुटबॉल क्लब है, राइट। इन्होंने फ्लूमिनेंस को यहाँ पे डिफीट कर दिया टू विन द फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2023 टाइटल को। ये 20वां एडिशन था फीफा क्लब वर्ल्ड कप का, राइट। एंड यहीं पर याद रखेंगे मैनचेस्टर सिटी ने ये अपना 5वीं बार फीफा क्लब वर्ल्ड कप टाइटल को जीत लिया है। ये आपका 12 दिसंबर से लेके 22 दिसंबर तक ये आपका इवेंट हुआ था, 20वां एडिशन था फीफा क्लब वर्ल्ड कप का, राइट। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट डेज। नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, 24 दिसंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे। एंड ये ऑब्जर्व किया जाता है ताकि जो कंज्यूमर राइट्स हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट की जा सके। नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे को ही हम बोलते हैं भारतीय ग्राहक दिवस या फिर नेशनल कंज्यूमर्स डे। पहली बार नेशनल कंज्यूमर्स डे कब ऑब्जर्व किया गया था, 1986 में पहली बार ऑब्जर्व किया गया था, ठीक। नेक्स्ट आ जाते हैं गुड गवर्नेंस डे। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, ये मार्क जरूर करना। गुड गवर्नेंस डे कब ऑब्जर्व करते हैं, तो हर साल हम 25 दिसंबर को ऑब्जर्व करते हैं गुड गवर्नेंस डे। एंड अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, 10th फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लेट अटल बिहारी वाजपेयी जी, इनकी बर्थ एनिवर्सरी पर हम ऑब्जर्व करते हैं गुड गवर्नेंस डे। 2023 में हमने 99th बर्थ एनिवर्सरी यहाँ पर इनकी ऑब्जर्व करी। एंड इसी के साथ साथ याद रखेंगे 2023 में हमने 10th गुड गवर्नेंस डे ऑब्जर्व करा। अगर मैं बात करूं गुड गवर्नेंस वीक की, तो गुड गवर्नेंस वीक ये तीसरा गुड गवर्नेंस वीक था, जो कि हम 19 से 25 दिसंबर तक ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट इज कोल इंडिया लिमिटेड। इन्होंने रिसेंटली एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, फॉर एस्टेब्लिशिंग मल्टी स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट्स। तो कोल इंडिया लिमिटेड ने अभी NSDC नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ यहाँ पे एक MOU साइन किया, जो कि मल्टी स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट्स को ओपन करेगा इन वेरियस सब्सिडरी कंपनीज ऑफ CIL, ताकि वहाँ पे लोगों को स्किल्स प्रोवाइड कराई जा सके। कुछ और करंट अफेयर्स देखें तो जैसे सांस, ये कैंपेन था मणिपुर के द्वारा लॉन्च किया गया था। एंड बेसिकली ये जो कैंपेन था ना, न्यूमोनिया को के खिलाफ ये कैंपेन लॉन्च किया गया था, ठीक है। फिर आता है जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इनके द्वारा एक एप्लीकेशन लॉन्च की गई फार्मर्स के लिए। एप्लीकेशन का नाम क्या रहेगा, पाट मित्रों, ठीक है। नेक्स्ट, रिपब्लिक डे पर किसको अपॉइंट किया गया है, फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन को, ठीक। फिर इसके अलावा अभी इजिप्ट के प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट किए गए हैं 3rd टाइम के लिए, अब्दे फतेह एल सीसी, राइट।
फिर ईडी ऑफ आईसीआईसीआई बैंक कौन अपॉइंट किए गए हैं? संदीप बत्रा। Which disease has been recently recognized as the neglected tropical disease? ये neglected tropical disease WHO के द्वारा ये रिकॉग्नाइज की जाती हैं और अभी रिसेंटली नोमा नाम की एक डिजीज को, ये एक नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज है, इसको रिकॉग्नाइज किया गया, राइट। और ये नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज की लिस्ट WHO के द्वारा प्रिपेयर की जाती है। इस लिस्ट में अब 21 डिजीज आती हैं, याद रखेंगे। ये जो इनिशिएटिव था इसको डिक्लेयर करने का एज द ट्रॉपिकल डिजीज, नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज, ये इनिशिएटिव लिया था गवर्नमेंट ऑफ नाइजीरिया के द्वारा। इन्होंने अपने ऑफिशियल्स के साथ मिलकर जनवरी 2023 में यहाँ पे एक प्रॉपर रिक्वेस्ट सबमिट की थी इन WHO, ताकि इस डिजीज को एक डिक्लेयर किया जा सके नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज। फिर इसी के साथ याद रखेंगे ये एक डेड टिश्यू डिजीज है, ये आपके माउथ और फेस पे जनरली आती है। एंड जो मालन्यूरिश्ड यंग इंडिविजुअल्स होते हैं, जो से 6 साल के बच्चे, उन पे यहाँ पे ये इफेक्ट होता देखने को मिलता है। एंड जनरली बोले तो जो पॉवर्टी रिस्ट्रिक्ट एरियाज होते हैं, जहां पर पॉवर्टी ज्यादा देखने को मिलेगी, उन एरियाज में हमें ये डिजीज का इफेक्ट देखने को मिलता है। नोमा नाम की डिजीज है, राइट। और इसको WHO ने अभी ऑफिशियली डिक्लेयर किया, रिकॉग्नाइज किया एज द नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज। नेक्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज साइंड अ लोन डील विद विच ऑर्गेनाइजेशन फॉर दिल्ली मेरठ RRTS कॉरिडोर। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी किस के साथ एक डील साइन करी? वो है एशियन डेवलपमेंट बैंक। इनके साथ यहाँ पर एक लोन डील साइन करी है ताकि दिल्ली मेरठ RRTS कॉरिडोर इसको डेवलप किया जा सके। RRTS क्या होता है? रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, करेक्ट। तो RRTS को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ यहाँ पर एक लोन अग्रीमेंट साइन किया। ये जो लोन अग्रीमेंट था, ये हम बोले तो $250 मिलियन का लोन रहेगा, या फिर ये इक्विवेलेंट है आपका 37 बिलियन जापानीज येन के, ठीक है। इससे क्या होगा? RRTS कॉरिडोर डेवलप होगा तो वीमेन एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि वीमेन फिर ट्रेवल कर सकेंगी इजीली, क्योंकि रोड की कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो जॉब अपॉर्चुनिटीज आएंगी, ट्रेड बढ़ेगा तो जॉब अपॉर्चुनिटीज आएंगी, राइट। तो इवन नॉट जस्ट दिस, जो लैंड एरिया होगा RRTS के आसपास का, उसमें भी काफी ज्यादा डेवलपमेंट देखने को मिलेगी। जहां जहां पर ये स्टेशंस डेवलप होंगे वहां पर काफी ज्यादा डेवलपमेंट देखने को मिलेगी, प्रॉपर्टी के प्राइसेस बढ़ेंगे, एंड वहां का जो एरिया है उसमें भी हमें काफी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी देखने को मिलेगा। अभी एक इंडिया स्किल्स रिपोर्ट आई थी, इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2024 की। इस रिपोर्ट में बताया गया कि इंडिया में वो कौन सी स्टेट है जो कि मोस्ट प्रेफर्ड स्टेट है फॉर बोथ मेल एंड फीमेल फॉर द एम्प्लॉयमेंट। ये रिपोर्ट रिलीज की गई, या फिर ये रिपोर्ट प्रिपेयर की गई VBox के द्वारा, जो कि एक टैलेंट असेसमेंट एजेंसी है। एंड इन्होंने ये इंडिया स्किल्स रिपोर्ट रिलीज करी, जो कि 11th एडिशन था इस इंडिया स्किल्स रिपोर्ट का। और इसमें इन्होंने बताया कि केरला वो स्टेट है जो कि बेस्ट या फिर मोस्ट प्रेफर्ड स्टेट है फॉर द एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया बाय बोथ मेल एंड फीमेल, राइट। फिर इन टर्म्स ऑफ लार्ज स्टेट अगर देखें तो जो ये हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ हाईली एम्प्लॉयबल यूथ है वो हमें गुरुग्राम हरियाणा में देखने को मिलता है, फिर पुणे महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, देन केरला एंड देन तेलंगाना। केरला की बात करें तो चीफ मिनिस्टर कौन रहेंगे? पिनरई विजयन। गवर्नर कौन रहेंगे? आरिफ मोहम्मद खान। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच कंट्री इज द डोमिनेंट सप्लायर ऑफ कुकिंग ऑयल इन द वर्ल्ड? नहीं, इन इंडिया देखते हैं, ठीक है। विच कंट्री इज द डोमिनेंट सप्लायर ऑफ कुकिंग ऑयल इन इंडिया? तो सबसे पहले याद रखेंगे ऑस्ट्रेलिया। इंडिया में कुकिंग ऑयल का जो सबसे बड़ा डोमिनेंट सप्लायर है वो कौन है? ऑस्ट्रेलिया, फॉलोड बाय USA एंड रशिया ऑन 3rd पोजीशन, ठीक है। तो इंडिया का कुकिंग कोल इंपोर्ट्स 5 ईयर हाई पे रहा, एंड यहां पर हमें कब से सबसे ज्यादा कहां से देखने को मिला सप्लाई? वो देखने को मिला ऑस्ट्रेलिया से, करेक्ट, मार्क करके चलेंगे, फॉलोड बाय USA एंड रशिया ऑन द 2nd पोजीशन। नेक्स्ट आ जाता है, इंडिया अलोंग विद विच कंट्री अग्री टू एक्सटेंड क्रूशियल IBP रूट? IBP की फुल फॉर्म पता लगती तो आप आंसर बता दोगे। तो IBP क्या होता है? इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल, इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल। तो पूछा जा रहा है इंडिया अलोंग विद विच कंट्री अग्री टू एक्सटेंड देयर इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल, तो वो बांग्लादेश रहेगा। और इससे होगा क्या? एक तो ट्रेड फ्लरिश होगा, एक दूसरी कंट्रीज के बीच में जो ट्रेड होगा वो बढ़ावा आएगा, राइट। आवाजाही होगी तो ट्रेड बढ़ेगा, आपका इकोनॉमी ग्रो करेगी, करेक्ट। बेटर फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जाएंगी। और एक और चीज यहां पे डिक्लेयर करी गई कि
सफरडिगी ये एक पोर्ट है वेस्ट बंगाल में, इसे पोर्ट ऑफ कॉल डिक्लेयर किया गया है। पोर्ट ऑफ कॉल डिक्लेयर किया गया किसको? सफरडिगी को। सफरडिगी को, ये कहां पर है? वेस्ट बंगाल में। अब ये पोर्ट ऑफ कॉल क्या होता है? पोर्ट ऑफ कॉल होता है जब कोई भी अपना क्रूज शिप या फिर कार्गो शिप अपने कंटेनर्स को, राइट, अपने कार्गो को आके वहां पे ऑफलोड कर सके, उसे पोर्ट ऑफ कॉल कहा जाता है। और सफरडिगी पोर्ट को अभी पोर्ट ऑफ कॉल डिक्लेयर किया गया, जो कि ये वेस्ट बंगाल में रहेगा। बीसीसीआई इन्होंने अनाउंस किया रिटायरमेंट ऑफ द फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर एमएस धोनीज आइकॉनिक जर्सी नंबर डैश। तो सबसे पहले तो याद रखेंगे, इससे पहले सचिन तेंदुलकर की जर्सी नंबर 10 को भी रिटायर किया गया था, एंड अब एमएस धोनी की जर्सी नंबर 7 को भी यहाँ रिटायर कर दिया गया है। ये रिटायर करने का मतलब है कि अब कोई भी आगे फर्दर इंडिविजुअल इन जर्सी नंबर्स को यूज नहीं कर पाएगा। ये इन लोगों के लिए यहाँ पे रिजर्व हो गई, इनको ऑनर करने के लिए। एमएस धोनी की बात करें तो पद्मश्री से इनको 2009 में सम्मानित किया गया था, पद्मा भूषण से इनको 2018 में सम्मानित किया गया था, और ये सेकंड क्रिकेटर बने जिनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया इन 2007, एंड सचिन तेंदुलकर को 1997 में करा गया था। कुछ और देखें तो वो इंडियन अमेरिकन मेडिकल स्टूडेंट कौन है जिनको क्राउन किया गया मिस इंडिया यूएसए 2023? वो है रिजुल मैनी। ठीक है, फिर वो कौन सी फिल्म है जिसको KIFF फेस्टिवल के दौरान बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया? इजरायली फिल्म है चिल्ड्रन ऑफ नोबडी। नेक्स्ट, किसको अभी प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल डॉक्टरेट अवार्ड से सम्मानित किया गया? नितिन मोहन लाल को। राइट, देन किसको अभी फिक्की वाटर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया फॉर वाटर यूज एफिशिएंसी? वो रहेगा NTPC कांति। ठीक, फिर लीफ एरिक्सन लूनर प्राइज से किसको सम्मानित किया गया? चंद्रयान 3 मिशन को। ठीक, फिर इसके अलावा जरा बताओ विजय हजारे ट्रॉफी किसके द्वारा जीती गई? हरियाणा के द्वारा पहली बार जीती गई है। देन MRF फॉर्मूला 2000 क्राउन किन्होंने जीता? वो है संदीप कुमार ने। मोस्ट एक्सपेंसिव IPL प्लेयर कौन रहा है इस ऑक्शन के दौरान, IPL ऑक्शन के दौरान? मिशेल स्टार्क। ठीक है, और सब जूनियर स्नूकर टाइटल किन्होंने जीत लिया? नताशा चेतन ने। इंडिया along with which organization signed a $100 million loan agreement to improve urban services and tourism facilities in the state of त्रिपुरा? तो त्रिपुरा स्टेट में हमें अर्बन फैसिलिटीज को डेवलप करना है, बेटर वाटर फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकें, राइट। उसके लिए हम देखेंगे 42 किलोमीटर की नई डिस्ट्रीब्यूशन पाइप्स को यहाँ पे सेटअप किया जाएगा, स्ट्रॉम ड्रेन्स को साफ किया जाएगा, नहीं है तो इस्टेब्लिश किया जाएगा, 4 नए ट्रीटमेंट प्लांट्स यहाँ पे लाए जाएंगे, एंड फिर टूरिज्म को अट्रैक्ट करने के लिए नई नई फैसिलिटीज यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाएंगी, करेक्ट। जिससे क्या होगा, टूरिस्ट ज़्यादा आए, यहाँ पर ज़्यादा टूरिस्ट आएंगे तो जो लोकल लोग हैं वहाँ के, जो कि इस टूरिज्म सेक्टर से इंक्लूडेड हैं, जो इस टूरिज्म सेक्टर में हैं, तो उनको यहाँ पे काफ़ी बेनिफिट देखने को मिलेगा, राइट। तो सिमिलरली याद रखेंगे इंडिया ने किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर ये $100 मिलियन लोन अग्रीमेंट साइन किया? तो वो है एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक यहाँ पे ये $100 मिलियन प्रोवाइड कराएगा त्रिपुरा में, राइट, ताकि ये सारी फैसिलिटीज हम ला सकें। नेक्स्ट आ जाता है अकॉर्डिंग टू CBRE इंडियाज रिपोर्ट विच स्टेट कॉन्ट्रीब्यूटेड हाईएस्ट शेयर ऑफ MSME इन इंडिया। मतलब MSME में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन इंडिया का किस स्टेट का रहता है, वो डाटा यहाँ पे CBRE इंडिया के द्वारा रिलीज किया गया। तो कौन सी स्टेट रहेगी? वो है हमारी महाराष्ट्र। कितना परसेंट शेयर रहेगा महाराष्ट्र का? 17% शेयर रहता है। महाराष्ट्र फर्स्ट पोजीशन पे आ जाती है। सेकंड पोजीशन पे आ जाता है आपका तमिलनाडु विद 10% शेयर, और थर्ड पोजीशन पे आ जाता है आपका यूपी विद जस्ट 9% शेयर ऑफ MSME टू द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया, राइट। ये जो रिपोर्ट है CREDAI, राइट, इसकी एक नेशनल समिट हुई थी, नेशनल न्यू इंडिया समिट, न्यू दिल्ली में हुई थी, करेक्ट, कहाँ पर हुई थी? वाराणसी में हुई थी, वाराणसी यूपी में हुई थी, और ये 5वां एडिशन था इस CREDAI समिट का, जो कि वाराणसी यूपी में हुई, 7 से लेकर 9 जनवरी के बीच में हुई, करेक्ट। और यहाँ पे CBRE इंडिया रिसर्च इस न्यू इंडिया समिट का पार्टनर था, नॉलेज पार्टनर, करेक्ट। और इन्हीं के द्वारा यहाँ पे ये डाटा रिलीज किया गया कि महाराष्ट्र का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा देखने को मिलता है ऑफ MSME इन इंडिया। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज द मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर स्मॉल फाइनेंस बैंक एज पर RBI।
आरबीआई ने अभी एक नई गाइडलाइंस रिलीज की कि किनको भी अगर स्मॉल फाइनेंस बैंक की तरह वर्क करना है तो उनके पास मिनिमम कैपिटल पहले 100 करोड़ रुपीस का होना चाहिए था, लेकिन अभी इस वैल्यू को बढ़ा के कितना कर दिया है, 200 करोड़ रुपए। अगर अब आप अपना स्मॉल फाइनेंस बैंक खोलना चाहते हैं तो आपके पास 200 करोड़ रुपए होने चाहिए इन द बैंक टू एक्ट एज अ स्मॉल फाइनेंस बैंक। इवन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, राइट, जो कि स्मॉल फाइनेंस बैंक बनना चाहते हैं, उनको अपना भी कैपिटल रिक्वायरमेंट 100 करोड़ से 200 करोड़ रुपीस करना पड़ेगा इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे बनता है कि कितना कैपिटल रिक्वायरमेंट होना चाहिए स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए, 200 करोड़ रुपए यहाँ पे होने चाहिए। ठीक, आरबीआई की बात करें तो शक्तिकांत दास, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र, और 1 अप्रैल 1935 में ये स्टैब्लिश किया गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स ट्रांजिशनिंग इनटू स्मॉल फाइनेंस बैंक नीड एन इनिशियल नेटवर्थ ऑफ 100 करोड़ रुपीज टू बी इंक्रीज्ड टू 100 करोड़ रुपीज विद इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स। मूविंग ऑन, नेक्स्ट है अवार्ड एंड रिकॉग्निशन के ऊपर। तो अभी 81st एडिशन ऑफ गोल्डन ग्लोब अवार्ड से सम्मानित किया गया लोगों को ड्यूरिंग कैलिफोर्निया यूएसए इन बेवर्ली हिल्स। तो यहाँ पे क्रिस्टोफर नॉलन की मूवी ओपनहाइमर, इनको 5 अवार्ड मिले। ये अवार्ड आपकी बेस्ट फिल्म इन ड्रामा, बेस्ट एक्टर इन ड्रामा, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, बेस्ट ओरिजिनल स्कोर बाय लुडविग ग्वानसन, इनको इन अवार्ड से सम्मानित किया गया। क्रिस्टोफर नोलन की जो मूवी है ओपनहाइमर, इसमें ओपनहाइमर का रोल, जे रॉबर्ट ओपनहाइमर का रोल किसने प्ले किया, सिलियन मर्फी ने, राइट। एंड इनको यहाँ पर बेस्ट मेल एक्टर इन ड्रामा से भी सम्मानित किया गया। नेक्स्ट आ जाता है फिर हु हैज बीन नेम्ड फॉर द कुवेम्पू अवार्ड 2023। ये जो कुवेम्पू अवार्ड होता है ना, ये लिटरेटर्स को अवार्ड दिया जाता है जिन्होंने किसी भी लैंग्वेज में जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के द्वारा रिकॉग्नाइज की गई है उसमें अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया होता है। तो अभी श्रीशेंदु मुखोपाध्याय, ये एक बंगाली राइटर है जिनको अभी कुवेम्पू अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया, गिवन बाय कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 बाय द कुवेम्पू राष्ट्रीय केम्पू ट्रस्ट। इनको यहाँ पे 5 लाख रुपए, एक सिल्वर मेडल एंड एक साइटेशन से भी सम्मानित किया गया। इसके अलावा याद रखेंगे इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था 1989 में, एंड शी बिकेम अ फेलो ऑफ साहित्य अकेडमी इन 2021। बंगाली राइटर श्रीशेंदु मुखोपाध्याय। नेक्स्ट है हु हैज बीन नेम्ड एज द एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ नालसा। एक तो क्वेश्चन ये हो गया, दूसरा याद रखेंगे कि इनको अपॉइंट किया गया एज द चेयरपर्सन ऑफ SCLCS। SCLCS क्या है, सुप्रीम जज ऑफ द, और वी कैन से हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द SCLCS, दैट इज सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी के चेयरमैन कौन बने। तो 2 क्वेश्चन हो गए। सबसे पहले देखते हैं एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कौन बने हैं नालसा के, वो है जस्टिस संजीव खन्ना, पहली चीज। दूसरा याद रखेंगे चेयरमैन कौन बने हैं सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी के, वो है BR गवाई। ये चेयरमैन बने हैं सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी के। ठीक है, आप यहां पे देख सकते हैं जस्टिस BR गवाई ये अपॉइंट किए गए एज द चेयरमैन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी SCLSC के, एंड संजीव खन्ना को ये सक्सीड करेंगे। और संजीव खन्ना क्या बन गए यहाँ पे, ये एग्जीक्यूटिव चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं नालसा के। ठीक है, मार्क करके चलेंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं संजीव खन्ना अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ नालसा, एंड ये किनको सक्सीड करेंगे, संजय किशन कौल को सक्सीड करेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं एसी ने अपॉइंट किया whom एज सेक्रेटरी टू द रेलवे बोर्ड इन IRMS। तो किनको अपॉइंट किया गया सेक्रेटरी टू द रेलवे बोर्ड इन IRMS, वो है अरुणा नैयर। मार्क करके चलेंगे, अरुणा नैयर ये इंडियन रेलवे पुलिस सर्विस ऑफिसर है ऑफ 1987 बैच, करेक्ट। एंड इनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया एज द सेक्रेटरी टू द रेलवे बोर्ड इन इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सिस्टम लेवल 16 विद इफेक्ट फ्रॉम 6 जनवरी 2024। एंड ये पहली IRPS ऑफिसर बनी जिनको एम्पैनल किया गया इन IRMS एट लेवल 16। ठीक, अरुणा नैयर। नेक्स्ट पे आते हैं, कनाडा की ब्रुकफील्ड सेट टू एक्वायर ETC इंडिया फॉर डैश अमाउंट। तो याद रखेंगे कैनेडा बेस्ड ब्रुकफील्ड एसेट मैनेजमेंट थ्रू देयर एफिलेट डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट ये एक्वायर करेंगे इंडियन यूनिट ऑफ अमेरिकन टावर कॉर्पोरेशन, कितने में, $2.5 बिलियन के लिए यहाँ पे ये इसको एक्वायर करेंगी ETC इंडिया को। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है फिर अभी रिसेंटली रोटेटिंग डेटोनेशन
रॉकेट इंजन RDRE ये अभी टेस्ट किया गया किस स्पेस एजेंसी के द्वारा, अल्बामा USA में। तो नासा जो कि USA की स्पेस एजेंसी है, इनके द्वारा ये RDRE रोटेटिंग डेटोनेशन रॉकेट इंजन को टेस्ट किया गया। करेक्ट, ये बेसिकली एक रॉकेट इंजन है, फर्स्ट टाइप ऑफ इंजन है जो कि जनरेट करता है थ्रस्ट पुश यूजिंग सुपरसोनिक कंबशन फिनोमेना, जिसको डेटोनेशन कहते हैं। राइट, मार्क करके चलेंगे। 251 सेकंड्स के लिए इसको टेस्ट किया गया था एंड बेसिकली थ्रस्टर्स क्लासेस को और इंजन्स को अपना और बेटर करने के लिए ये एक टेस्ट किया गया था कि इट कैन बी ऑल्सो अ टाइप ऑफ इंजन। देन नासा की अगर मैं बात करूं तो एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पे कौन रहेंगे, बिल नेल्सन। हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में रहेगा। 1958 में इसको एस्टेब्लिश किया गया। चाइना एंड डैश कंट्री इन्होंने मिलकर अभी 2 कॉपरेशन डॉक्यूमेंट साइन किए ऑन स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड टू बूस्ट दी स्पेस एक्सप्लोरेशन, स्पेस डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर। तो बेसिकली मोटा देखा जाए तो चाइना एंड इजिप्ट के बीच में ये एग्रीमेंट साइन हुआ ताकि स्पेस एक्सप्लोरेशन से रिलेटेड हम काम करें, चाहे उससे रिलेटेड स्पेसक्राफ्ट बनाना हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना हो या कुछ भी। तो इजिप्ट एंड चाइना के बीच में, चाइना की होती है CNSA एंड इजिप्ट की होती है EGSA, इनके बीच में ये एग्रीमेंट साइन हुआ। Next, which of the following abrogated article of the Indian Constitution has given special status to the state of Jammu and Kashmir? तो वो है आर्टिकल 370। राइट, मार्क करके चलेंगे इसको। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अभी राइट दे दिया टू एलिमिनेट दिस आर्टिकल 370। करेक्ट, इसको 2019 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपहेल्ड किया था द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 बाय प्रेसिडेंशियल ऑर्डर ऑन 5 अगस्त 2019। एंड ये जो आर्टिकल 370 है ये ग्रांट करता है जम्मू एंड कश्मीर को टू मेक देयर ओन लॉज इन द मैटर एक्सेप्ट फाइनेंस, डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स से रिलेटेड जो वो मैटर हैं वो उनमें डील कर सकते हैं, अपने लॉज बना सकते हैं एक्सेप्ट इन दीज कैटेगरीज। ठीक, नेक्स्ट, विच कंट्री हैज रिसेंटली अनवेल्ड एडवांस क्रार कॉम्बैक्ट ड्रोन्स आर्म्ड विद एयर टू एयर मिसाइल? तो ये क्रार कॉम्बैक्ट ड्रोन्स किसके हैं, ईरान के रहेंगे। राइट, इनकी रेंज रहेगी 1000 किलोमीटर तक की। इसी के साथ साथ एक थर्मल मिसाइल का भी नाम याद रखेंगे, थर्मल मिसाइल, क्या नाम रहेगा इसका, माजिद। राइट, माजिद नाम की ये थर्मल मिसाइल रहेगी, 8 किलोमीटर तक की इसकी रेंज रहेगी। इसको भी ईरान के द्वारा ही डेवलप किया गया है। राइट, एंड क्रार कॉम्बैक्ट ड्रोन्स ये भी ईरान के द्वारा। नेक्स्ट, which company has recently signed 588.68 crore rupees contract with Ministry of Defence to acquire Digital Coast Guard project under Buy Indian category? I repeat, किस कंपनी ने रिसेंटली साइन किया 588.68 करोड़ रुपीस कॉन्ट्रैक्ट विद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस टू एक्वायर द डिजिटल कोस्ट गार्ड प्रोजेक्ट अंडर बाय इंडियन कैटेगरी? वो है टेलीकम्युनिकेशंस कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड। राइट, इन्होंने अभी ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया डिजिटल कोस्ट गार्ड प्रोजेक्ट के लिए अंडर द बाय इंडियन कैटेगरी। एंड ये जो डिजिटल कोस्ट गार्ड प्रोजेक्ट है ये एक इनिशिएटिव रहेगा किस ऑर्गेनाइजेशन का, इंडियन कोस्ट गार्ड का। वेयर वॉज द 18th सेशन ऑफ द यूनेस्कोज इंटरनेशनल कमिटी फॉर द सेफ गार्डिंग ICH हेल्ड? ये ICH क्या है, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। ICH होता क्या है, इंटेंजिबल वो चीज होती है जिसको आप टच नहीं कर सकते हैं। राइट, और टेंजिबल वो होता है जिसको आप टच कर सकते हैं। तो इंटेंजिबल कल्चर क्या हो गया, जैसे आपके फेस्टिवल्स हो गए, राइट, कोई आपकी प्रथा हो गई, कोई आपका वे ऑफ डूइंग समथिंग हो गया, राइट, वो तो हो गया आपका इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में क्या आ जाता है, जैसे टेंपल की बिल्डिंग्स हो गई, राइट, वो आपका टेंजिबल क्योंकि आप उसको फिजिकली टच कर सकते हैं। तो ऐसे ही पूछा गया, अभी 18वां सेशन हुआ ऑफ द यूनेस्कोज इंटरनेशनल कमिटी फॉर सेफ गार्डिंग ICH इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, ये कहां पर हुआ, तो ये बोत्सवाना में हुआ। इंपॉर्टेंट है, 5 से लेके 8 दिसंबर के बीच में हुआ। ये कहां पर हुआ, बोत्सवाना में हुआ। और इस सेशन के दौरान 55 नई कल्चरल प्रैक्टिसेस को इंडिया में और ग्लोबली 55 नई कल्चरल प्रैक्टिसेस को इंक्लूड किया गया इस लिस्ट में, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में। और इंडिया के गरबा डांस को भी यहाँ पर ऐड किया गया इन दिस इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट। दुर्गा पूजा जो कि वेस्ट बंगाल का है वो भी इस लिस्ट में आता है। ठीक है, मार्क करेंगे। नेम द बैंक दैट हैज रिसेंटली कोलैबोरेटेड विद LIC कार्ड सर्विस लिमिटेड एंड मास्टर कार्ड टू लॉन्च अ को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड? तो क्या नाम रहेगा उसका, वो है IDFC फर्स्ट बैंक। राइट, इन्होंने अभी रिसेंटली कोलैबोरेट किया LIC कार्ड सर्विस लिमिटेड के साथ एंड मास्टर कार्ड के साथ, ताकि एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड को यहाँ पे लॉन्च किया जा सके। ये जो क्रेडिट कार्ड है इसमें कोई भी ज्वाइनिंग फीस नहीं होगी, कोई भी एनुअल फीस नहीं होगी एंड टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज को यहाँ कैटर के कस्टमर्स को कैटर करने के लिए लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज हैज हैव रिसेंटली ऑनर्ड
विद द इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसआर्ममेंट एंड डेवलपमेंट 2023। तो 2 लोगों को यहाँ पे सम्मानित किया गया है इस इंदिरा गांधी पीस प्राइज से, वो हैं अली अबू अवाद एंड डैनियल बेरेनबोइम, राइट। इन दोनों को यहाँ पे सम्मानित किया गया अभी रिसेंटली विद द इंदिरा गांधी पीस प्राइज से, करेक्ट। फिर मार्क करके चलेंगे इसको, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। नेम द 7th 250 मैन फेरी क्राफ्ट जो भी डिलीवर की गई बाय द शालीमार वर्क्स 1980 लिमिटेड टू द इंडियन नेवी। तो क्या नाम रहेगा उसका? मंजूला यार्ड 786। ये डिलीवर किया गया अभी टू इंडियन नेवी। ये एक 250 मैन फेरी क्राफ्ट रहेगी, शालीमार वर्क्स 1980 के द्वारा इसको डिलीवर किया गया। मार्क करके चलेंगे इसको, ठीक है। 25 साल की इसकी लाइफ रहेगी। That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session, and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end, friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.